Hello, good morning everyone. As you all know that we are on chapter 6, that is the molecular basis of inheritance. In this you have to clear all these terms. What terms we already studied, that is the DNA. About the DNA we have completed, and the DNA fingerprinting we have completed, human genome project we have completed, and the regulation of gene expression we also have completed this. Now today the topic is the search for genetic material, that is the DNA or RNA. We have to focus on this term very well. You can see about the DNA. We already study about the structure of polynucleotide chains. You can see very well about their nitrogenous bases, about their pentose sugar, and also their primes, and also their bonding process, and also about their helical structure, their discoverer. Now we have to focus on this central dogma process. First we have to clear this term. Now every organism, living organism, have its own nucleic acid in the form of DNA. Okay, the replication starts DNA. This process you can see when the DNA is converted into mRNA. The language of DNA is converted into mRNA when the ACTG is converted into ACUG at the place of T. When the U come, and these codons read by the messenger RNA. This process is known as the transcription. The transcript is ready to read. Now after the mRNA process, the function of mRNA is to make the protein. When their polypeptide chain becomes start, take places to peptide is ready to form, then the protein formation that starts and takes place, and the mRNA, from mRNA to protein formation, this process is known as the process of translation. When both the transcription and translation takes place, this process is known as the central dogma in the presence of the enzymes that are the transcriptase enzyme, and in this the translase enzyme. Okay, now move ahead. Packaging of DNA helix. You can see this is one type of histone molecule, and the structure of nucleosome. You can see the packaging of DNA on the histone molecule, like they are supercoiling above the histone octamer. This one is H1 histone, and DNA is coiling like this type of DNA coiling like this to make the chain in proper manner. You can see the significance in prokaryotes such as E. coli. They do not have a defined nucleus. इनमें क्योंकि अपना proper nucleus नहीं होता है E. coli में, the DNA is not scattered throughout the cell. सेल में ये पूरी तरीके से बिखर नहीं पाते हैं, and they do not have their duplication. So being negatively charged is held with the some proteins that are known as the nucleoid. और the DNA is nucleoid is organized in large loops held by the protein. और इसी तरीके से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. Now you can see what do you mean by heterochromatin. NHC, you have to focus on NHC, that is the non-histone chromosomal proteins. In typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stain light. कुछ जो होते हैं loosely packed होते हैं, they are having gap between them, and light staining होती है, इनकी dark staining नहीं होती है. They referred as euchromatin. इनको euchromatin के नाम से ही जाना जाता है. एंड द क्रोमोसोम दैट इज़ मोर डेंसली पैक्ड, और जिसमें बिल्कुल गैपिंग नहीं होती है, प्रॉपरली डेंसली पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ DNA coiling.
और इनका स्टेन भी डार्क होता है, दे आर नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन. यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म वेरी वेल. दिस कॉज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन इज सच said to be ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन. क्रोमेटिन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वेयर एज द हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव. जो डार्क स्टेनिंग होते हैं वो हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, ये आपको याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. किसने की थी? मिशर ने. इवन दाउ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर and the proposition for principles of inheritance by Mendel were almost the same time. दोनों एक साथ ही हुई थी. मिशर ने भी अपना न्यूक्लिक एसिड का दिया था, डीएनए का, और मेंडल ने भी अपना उसी वक्त अपना जेनेटिक लॉ दिए थे. बट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. क्या ये बात प्रॉपरली, क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली रीजनेबल साबित हुआ है? क्या डीएनए वाकई में एक जेनेटिक मटेरियल है? नाउ लुक नाउ टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन. क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने ये कहा था कि जो जीन्स हैं इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट जो मिशर है उन्होंने ये कहा था डीएनए एज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो व्हाट इज़ द रीज़न कॉजेज बिटवीन देम? तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. इन 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस. तभी से यहाँ से खोज स्टार्ट हुई थी, रिसर्च स्टार्ट की थी, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, द जीन और डीएनए. सो मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कवरी इनकी स्टार्ट होती है. प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रीगर मेंडल, वॉल्ट सटन, थॉमस हंट, जो कि उन्होंने अपना ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे दिया था म्यूटेशन का, लिंकेज का. अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च फॉर क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल. बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड. सभी ने अपने अपने व्यूज़ दिए, बट ये किसी ने क्लियर नहीं करा कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या. आफ्टर द परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रैट के ऊपर, माइस के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया. यू कैन सी इन 1928. और इस एक्सपेरिमेंट से प्रॉपर मैनर में जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्लियर हो गया. व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल? इन 1928 द फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. दिस इज द बैक्टीरिया ऑफ causing the disease pneumonia, bacterium responsible for pneumonia. Okay, witnessed a miraculous transformation in the bacteria during the course of his experiment. अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरेशन में इन्होंने क्या करा, कुछ तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने की इन्होंने कोशिश की. लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के थ्रू हैड चेंज इन द फिजिकल फॉर्म. नाउ व्हाट अकर्स व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनोकोकस के नाम से बैक्टीरिया जाना जाता है, आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट. वो उसको ग्रो किया, कल्चरिंग करी उसको अपनी क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ाया. सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनिंग कॉलोनीज. कुछ जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग, जो शाइनिंग कॉलोनीज थी उनकी बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे. और कुछ जो थे दे आर हैविंग रफ कॉलोनीज, मतलब उनके अंदर इतनी शाइन नहीं थी, बट उन्होंने कल्चरिंग करी अपनी. कुछ ज़्यादा चमक रहे थे और कुछ बैक्टीरिया कम चमक रहे थे. जो ज़्यादा चमक रहे थे उन्होंने उसको कैपिटल एस से डिनोट कर दिया शाइनिंग में, और जो कम चमक रहे थे रफ में वो उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज़ बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव द म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोट. क्योंकि इसमें ये पता चला था कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे जो ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे, वो किस वजह से शाइनिंग कर रहे थे, बिकॉज दे आर हैविंग पॉलीसेक्राइड कोट, दे आर हैविंग द कोटिंग, शुगर कोटिंग. यू हैव टू फोकस ऑन दिस. और जो रफ थे उसमें क्या था, वो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं थी. माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन. माइस जब उसे सफ़र कराया गया उन बैक्टीरिया से, जो चूहे थे वो क्या करें, इन्फेक्टेड होने लगे इन दी वायरलेंट फॉर्म और डाई, और वो निमोनिया की डिजीज़ से क्या होगा, धीरे धीरे मरने लगे. इन्फेक्शन बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया. मगर जो आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराए गए थे जो माइस को, मगर वो नहीं मरे थे. क्यों नहीं मरे थे? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द कोट ऑफ पॉलीसेक्राइड
ओके। तो एस वाला जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव मोशन में था और उसने क्या करा था, उसको बैक्टीरिया को ज़्यादा प्रॉपर मैनर में जेमिनेट कर दिया था और वो माइस के ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे थे, जिसकी वजह से माइस जो है वो डाई होने लगे प्रॉपर मैनर में। नाउ कम टू द एक्सपेरिमेंट, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। यूज़ ऑफ एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन क्या हुआ, जब एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस क्या हो गए, मर गए। आर स्ट्रेन किया गया क्योंकि रफ स्ट्रेन था, विदाउट पॉलीसेक्राइड, द माइस लिव, जिंदा थे। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ही वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी उन्होंने शो की। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अगर हम उनको एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके देंगे, अगर माइस के अंदर एंटर कराएंगे तो वो नहीं मरेंगे। इन्होंने ऐसा ट्राई किया क्योंकि हीट करने से जो बैक्टीरिया है वो अपनी पॉलीसेकेराइड की प्रोटीन को डैमेज कर देता था और डैमेज करने के बाद क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी थी वो एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी और वो माइस जो है वो नहीं मरेंगे। नाउ यू कैन सी एस स्ट्रेन हीट किल्ड, जब उन्होंने हीट किल दिया, इंजेक्ट किया माइस में, माइस लिव, माइस जो थे वो जिंदा रहे सारे के सारे, ठीक है। बट आफ्टर व्हेन द एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लाइव, जब हीट करके स्ट्रेन को दिया और आर स्ट्रेन दोनों को इंजेक्ट कराया, आर स्ट्रेन को ऐसे ही और एस स्ट्रेन को हीट करके कराया माइस के अंदर एंटर, तब क्या हुआ, माइस जो थे वो सारे के सारे मर गए। व्हाट द रिजल्ट कम्स, व्हेन द इंजेक्टेड मिक्सचर हीट किल्ड एस और आर बैक्टीरिया और आर इन द बैक्टीरिया, द माइस डाइड। क्या रीज़न था, मोर ओवर ही रिकवर्ड द लिविंग एस फ्रॉम द डेड माइस। उन्होंने क्या करा, जो लिविंग एस बैक्टीरिया जो था उन्होंने गर्म करके दिया था, उससे ज़्यादा मोर एक्टिव मोशन में जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था विदाउट हीटिंग, वो उसको उसका ज़्यादा प्रॉपर फंक्शन हो रहा था और उसकी वजह से क्या हुआ, माइस सारे के सारे मर गए। नाउ ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म। अब इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि जो आर रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो कैसे डेवलप हो, हाउ दे फॉर्म बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन जो था आर स्ट्रेन के सामने बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव क्वालिटीज़ को शो कर रहा था, एंड इट सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायलेंट। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या करा, एस बैक्टीरिया से एस स्ट्रेन का जो कि प्रॉपर मैनर में हीट करके उन्होंने उसकी ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसको इनएक्टिव मोशन में बना दिया था, जिससे कि वो किल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया और उसकी भी स्मूथ कोटिंग कर दी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की, और उसको भी वायलेंट बना दिया जैसे कि वो एस स्ट्रेन की तरह फंक्शन कर रहा था। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या करा, इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके ये क्वालिटीज़ को डेवलप किया था, जो एस स्ट्रेन की थी आर स्ट्रेन में एंटर करा दी थी। नाउ हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इनसे अभी भी जेनेटिक मटेरियल का कुछ तरीके से क्लियर नहीं हुआ, बट biochemical characterization of transforming principle. So prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए अपने जेनेटिक मटेरियल में, वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो शायद प्रोटीन हो सकता है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस को वहाँ से ले लिया ग्रिफिथ से। नाउ दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, DNA एंड RNA एक्सेट्रा। इन्होंने अपनी प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर दी इन तीनों मटेरियल्स पर, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आर सेल को एस में कन्वर्ट कर दिया। इस डिस्कवर्ड दैट DNA अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म।
एस बैक्टीरिया के अंदर ऐसी क्वालिटी थी कि जो आर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की नीड हुई, जो उसका वायलेंट नेचर था, जो उसकी शाइनिंग प्रोसेस थी, वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कराई गई थी. They also discovered that a protein digesting enzyme that is known as the protease and RNA digesting enzyme that is RNase did not affect transformation. इस प्रोसेस के लिए वो बेनिफिटेड नहीं थे. सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वर नॉट अ प्रोटीन. अब यहाँ से ये पता चल गया था कि जिसकी कोटिंग जो थी वो प्रोटीन लेयर की पॉलीसेकेराइड्स से हो रही थी, वो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है. डाइजेशन विद द DNAs डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्ट दैट DNA कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. अब इन्होंने ये पता करा RNA से प्रोसेस नहीं हो रही थी, बट DNA से ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्ड हुई. एंड दे डायरेक्टली सेड दैट DNA इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. मगर वो उन सारे बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि DNA जो RNA का फंक्शन कर रहे थे वो प्रॉपर मैनर में. RNA जो है वो जेनेटिक नहीं मटेरियल है, बल्कि DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. So how you can see that DNA is a genetic material? This one is the second experiment related to the Hershey and Chase. So the next topic is the genetic material is DNA. We will continue this topic in the next video. You have to focus on this. और इसमें हम हर्शी और चेस का बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिससे कि DNA का जो जेनेटिक मटेरियल का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इन प्रोसेस से फ्रेडरिक ग्रिफिथ की प्रोसेस से अभी भी ये हमें नहीं पता चला है कि वाकई में DNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है. किसी ने सोचा प्रोटीन है, किसी ने सोचा RNA है. तो बाय देयर इंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए. बट वी विल कंटिन्यू the genetic material is DNA with the help of Hershey Chase in the next video. Okay, I hope you all understand the process of transforming principle given by Frederick Griffith on the mice. I hope you all understand very well. If you are having any queries related to this topic, you can contact to me. Try to ask your questions if you are having any queries. We will continue our Hershey and Chase experiment in the next video. Continue watching my video. The most important information is that you have to complete your notebook work properly, because your examinations are near. Half-yearly examination, you have to achieve it very well. So complete your notebooks, complete your proper work, your assignments. Okay, and also keep watching my videos, like my videos, and also subscribe, and do not forget to mention your attendance in the comment box. You have to mention your attendance in the comment box so we can see easily your presence. Okay, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आती तो आप इसको एक बार 2 बार देखें, तो आपको इसकी प्रोसेस जो है, इस ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी. अपनी क्वेरीज के लिए आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. We will meet in the next video with the experiment, that is Hershey or Chase experiment on the bacteriophage.